technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. Well, first up on the bulletin, let's tell you how Union Home Minister Amit Shah today, in an interview, has launched a blistering attack on the opposition on the criminal Netas bill. In fact, he questioned the opposition on their lessons on morality. He cited his own case and has said that he resigned a day after he received summons from the CBI. He was arrested as well. In fact, the case went on to get bail as well in the very same case. But he only took oath for a constitutional post, he says, after all charges against Amit Shah were quashed in the courts of law. Amit Shah then asked, can a prime minister or a chief minister run a government from jail? Rejecting claims that the bill aims to only target opposition and opposition-ruled states, Home Minister Shah has said that there are more NDA chief ministers in India than opposition ones. He's also revealed that Prime Minister Modi himself included his post, which is the Prime Minister's post, under this constitutional amendment. Unlike former Prime Minister Indira Gandhi, who famously brought in the 39th Amendment, which was aimed to protect the President, Vice President, Prime Minister and Speaker from judicial reviews by Indian courts. In fact, he even slammed the Congress party for its double standards. He said that Rahul Gandhi is hugging the convicted Lalu Prasad for power today, but he only trashed an 2013 ordinance to try and protect him. Watch this. गंभीर आरोप होते हैं इन लोगों के खिलाफ, वो उनको साबित करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए इतना वक्त लग जाता है। आप जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, बाकी डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वो हट जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यहाँ पे तो जेल में डाल देते हैं। देखिए, जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहाँ चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सीधी तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई और तुरंत रिवाइव भी हुई, ऊपर से सजा का स्टे मिलने के। तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। Meanwhile, anti-graft bill showdown has only escalated. This after Amit Shah's scathing attack which came on the Congress party after he accused Rahul Gandhi of double standards. Now the Congress has hit back at the Union Home Minister, saying that Parliament itself is being misused to divert attention away. Watch this. The
Home Minister is unable to understand that the Parliament cannot be misused for all their purposes to divert. It's a diversionary tactics, and it is an we all know that against corruption there was an Anna movement, and there was Lokpal formed, there was Lok Ayuta formed. That Lokpal and Lok Ayuta has become toothless now. Therefore, we would like to ask the Home Minister that his political agenda to divert from the real issues, that is vote chori, he has brought this bill without any kind of consultations. Therefore, this is without proper consultations. We as India Alliance will continue to oppose these kind of things, which is anti-democratic. We are going back to the medieval times. While the Congress says that we are going back to the medieval times, now you have a bigger showdown which is in the cards. Union Law Minister has also come out echoing the Home Minister, speaking exclusively to Times Now. Law Minister Arjun Megwal says that he's speaking to various parties to give names for the JPC. Union Law Minister has targeted Rahul for tearing the ordinance as well. Remember, this at a time when many of the parties, be it the Aam Aadmi Party or even the TMC, have come out and said that they are going to boycott the JPC. Listen in to the Union Law Minister. Joining me in this exclusive conversation is Union Law Minister Mr. Arjun Ram Megwal. मेघवाल जी, आज अमित शाह जी ने क्लैरिफाई किया है क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया है ग्राफ्ट चार्जेस के अगेंस्ट, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हो वो 31वें दिन अपनी पोस्ट पर नहीं रहेगा अगर वो अरेस्टेड है, डिटेन्ड है, ये क्यों लाया गया, इस पे उन्होंने अपना पक्ष साफ किया है। हालांकि ऑपोजिशन अभी भी कह रही है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की जो है उनकी कवायद है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को टारगेट करने का पूरा मसौदा तैयार किया गया है। देखिए, अपोजिशन में विशेष करके राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि कोई भी अच्छा बिल हो, प्रोग्रेसिव लॉ हो, उसका विरोध करना है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। अब ये जो बिल है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, इस बिल में ये प्रावधान है कि ऐसा कोई अपराध जिसमें कानून के तहत सजा 5 साल या उससे अधिक होने वाली हो और वो इसमें लिप्त पाया जाए, कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता, सार्वजनिक नेता, पद पर रहने वाला मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी, और वो जेल चला जाए, कोर्ट उसको जमानत नहीं दे क्योंकि भी आपका अपराध संगीन है। अब ये बताइए मुझे कि क्या जेल से सरकार चलेगी या मंत्री जेल से काम करेगा? गवर्नेंस कैसे होगी? ये तो बहुत प्रोग्रेसिव लॉ है जो लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए हैं। गृह मंत्री जी ने उसको लोकसभा में पेश किया, राज्यसभा में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने का जो मोशन है, उस मोशन को भी उन्होंने रखा। उस समय भी उन्होंने ये बताया कि ये कमेटी के पास हम भेज रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिव लॉ है, इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है, विशेष करके राहुल गांधी जी जिनके साथ ज्यादा रहते हैं, उन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी के हर अच्छे कदम का भी हमें तो विरोध करना है। पर ऑपोजिशन ने ना तो इस पे चर्चा की, चर्चा करने के बाद अगर जेपीसी भेजा जाता, हो सकता है कि उनकी जो डाउट्स थे वो क्लैरिफाई होते, और जेपीसी के लिए भी बहुत सब कह रहे हैं कुछ ऑपोजिशन मेंबर्स कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये बिल पूर्णतः अनजस्टिफाइड है, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लोगों को टारगेट किया जा सकता है, हो सकता है कोर्ट से भी उन्हें रिस्पाइट ना मिले टाइम से। देखिए, अपोजिशन के लोगों से तो मैं बात कर रहा हूं कि भाई आप जेपीसी में नाम भेजिए। अधिकतर अपोजिशन के नेताओं का मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि हम 1-2 दिन में नाम देंगे। 1-2 अपोजिशन के नेताओं ने आपत्ति प्रकट की तो हमने बताया भी बिल बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप ये बताइए, मैंने ही उनसे पूछा, आप ये बताइए कोई मंत्री है
Well, there you have it. After that super exclusive of Times Now with the Union Law Minister, let's get you a BJP press conference which is happening. Shehzad Poonawalla, the national spokesperson, is addressing it. मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र या राज्य के मंत्री क्यों ना हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध के मामले में जो 5 वर्ष से ज्यादा जिसकी सजा हो, उसमें अगर वो जेल जाते हैं और लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं और उनको न्यायिक राहत ना मिले किसी भी रूप से, तो वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा। मोटा मोटी ये कानून इस चीज को सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कानून नैतिकता के पक्ष में है, मतलब कि ये कानून गुड गवर्नेंस के पक्ष में है, मतलब ये कानून क्लीन पॉलिटिक्स के पक्ष में है, मतलब ये कानून सुशासन के पक्ष में है। और जो सुशासन और क्लीन गवर्नेंस में जो सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, इसको हटाने में ये सबसे बड़ा एक प्रकार से वरदान है। पर दुख की बात यह है कि आज जब पूरे देश ने इस नैतिकता के हथियार को, इस सुशासन के हथियार को, उसका स्वागत किया है, तो एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज है जो कह रही है खुले मंच से कि हम नैतिकता के साथ नहीं, हम निर्लज्जता के साथ है। हम पॉलिटिक्स में प्रोप्राइटी और प्रिंसिपल के साथ नहीं, हम पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ है, और परिवार पर दाग लगता रहे, पर हम पावर के साथ है। मतलब कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के इस इनिशिएटिव के बाद बहुतेक लोग तो समर्थन कर रहे हैं नैतिकता एंड क्लीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल का, पर एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है, जो हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है वो कहता है कि हम तो निर्लज्जता के साथ, हम तो पावर के साथ। सोचिए इनका गाना क्या बनेगा। अगर इन्होंने, आजकल ये रील बनाने में एक्सपर्ट है, तो इनका गाना बनेगा तो उसका गाने का स्क्रिप्ट होगा, भ्रष्टाचार मेरे परिवार का शिष्टाचार, भ्रष्टाचार ही मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड, यही मेरा गाना है, मैं हूं भ्रष्टाचार का सबसे परम यार। ये भ्रष्टाचार के यार आज नैतिकता के पटल पर जो कानून लाने की चेष्टा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और सोचिए जेपीसी जब ये मामला गया है तो कुछ लोग तो बहिष्कार भी कर रहे हैं जेपीसी का। अब सोचिए ये तो क्या क्या नहीं बहिष्कार करते। ये तो बहिष्कार भ्रष्टाचार का करने के बदले, बहिष्कार अपराध का करने के बदले, ये कभी शुभांशु जी के लिए जब सम्मान समारोह होता है या सम्मान में उनके डिस्कशन होता है उसका बहिष्कार करते हैं। जब रेड फोर्ट पर अधिकृत जो 15 अगस्त का देश का कार्यक्रम होता है उसका बहिष्कार करते हैं। जब प्रथम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है उनका प्रथम संबोधन होता है उसका बहिष्कार करते हैं। ये भ्रष्टाचार और अपराध छोड़कर सब कुछ का बहिष्कार करने वाले लोग हैं। और ये बहिष्कार ब्रिगेड में वो भी पार्टियां हैं, अद्भुत पार्टियां, जिन्होंने जन्म लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सौगंध खाई थी। टोपी पहन पहन कर रामलीला में बोलते थे लोकपाल लाएंगे, सबको जेल भिजवाएंगे, 14 लोगों की फहरिस्त लेकर घूमते थे कि बिना एफआईआर, बिना कोई एक्यूजेशन के इनको इस्तीफा देना चाहिए, तिहाड़ जाना चाहिए, 2 दिन तक बंद करो तिहाड़ में, देखे सब उगल देंगे। ये ऐसा कहने वाले लोग, इनका भी पॉलिटिकल यूटर्न या यूं कहूं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हुआ है कि अन्ना छोड़ के लालू तक, झाड़ू छोड़ के दारू तक, पाठशाला छोड़ के मधुशाला तक, और शराब में ऐसे खराब हुए कि अब बोलते हैं कि जिनको तिहाड़ भेजने का प्लान था उनके साथ बैठकर बोलते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए, और चलाई भी। 150 दिन तक तिहाड़ से सरकार चलने का अगर एकमात्र उदाहरण था तो वो इन्हीं व्यक्तियों से था, ये जो आए थे राजनीति को बदलने के लिए। खुद कितना बदल गए। ये जो कानून है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नैतिकता है, इसका जन्म कहां से होता है? जन्म तो संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी केएम मुंशी से लेकर बाकी हमारे महानुभावों की, तो उन्होंने ये हमेशा सोचा था कि एक नैतिकता की राजनीति होगी। उनको तो लगा कि भाई हमारे नेता आएंगे तो वो नेता होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, कि एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया,
लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, मदन लाल खुराना जी जैसे केवल ML लिखा था डायरी में और वो एंट्री तो इज नॉट इवन प्रूफ, तो मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे कि भाई जेल जाने से पहले, आरोप लगने से पहले या आरोप सिद्ध होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको तो लगा कि ऐसी नैतिकता के पटल पर राजनीति होगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि निर्लज्जता का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति वो होगा जो लोकपाल की मांग रामलीला मैदान से करता था, और वो कहेंगे कि हम नहीं देंगे इस्तीफा। 150 दिन, 160 दिन जेल से सरकार चलाई, और जेल से जब सरकार चलाई तो कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं। इनके एक और साथी सेंथिल बालाजी, उन्होंने 244 दिन मंत्री पद ग्रहण रखा, यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत भी दी तो वार्निंग देना पड़ा कि यदि इनको फिर से बनाया मंत्री तो हम सीधा जेल में अंदर भेज देंगे। ये क्या चल रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होगा? इन्फ्लुएंस होंगे विटनेसेस, किस प्रकार से दबाव डाला जाएगा? इन्वेस्टिगेशन में तो बाधा होगी होगी, पर आप सोचे प्रैक्टिकली भी ये क्या चाहते हैं। ये हम लोग कोविड में थे तो आप सभी लोग, हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ये पहली बार वर्क फ्रॉम जेल कॉन्सेप्ट चाहते हैं क्या इस देश में? वर्क फ्रॉम जेल होगा मतलब कि मुख्यमंत्री बैठेंगे अंदर, कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए कि युद्ध या मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आती है, अर्जेंट डिसीजन लेना है, कैसे लिया जाएगा? जेल के भीतर से? या आप सोचे, कल्पना कीजिए कि जो कैबिनेट की फाइल्स होती है, आप लोग कवर करते हैं गवर्नमेंट को, सीक्रेट होती है। अब जब कुछ अंदर आता है जेल के, वो तो चेक होकर आती है, तो क्या ये सीक्रेट फाइल्स अब वहां के प्रशासन को बताकर फिर अंदर आएगी कैबिनेट मीटिंग के लिए? और जन सुनवाई कहां होगी? हालांकि ये लोग जनता से कटे हुए लोग हैं, पर जन सुनवाई क्या? आप जेल में एक मतलब अलग से कमरा होगा, वहां पे जनता आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी। जब महाशय जेल में होंगे तब ये किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? तो नैतिकता पर तो ये कहीं पर भी टिक नहीं पाता, प्रैक्टिकलिटी पे भी नहीं टिक पाता। और वैसे तो ये लोग कहते हैं ना, ये सामाजिक न्याय का बोर्ड पहनकर घूमते हैं, सामाजिक न्याय का बोर्ड पहन के घूमते। सामाजिक न्याय का सबसे अहम प्रिंसिपल क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब आप देखिए कि कोई अगर केंद्रीय कर्मचारी हो सरकारी, तो वो CCS के रूल से गवर्न होता है, और रूल 10(2) बोलता है कि यदि कोई कर्मचारी 2 दिन तक अगर जेल में रहे तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। वाह भाई वाह! केंद्रीय सरकार का या कोई सरकारी कर्मचारी तो 2 दिन तक जेल रहे वो सस्पेंड हो जाए, पर ये जो सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाने वाले, आर्टिकल 14 का हवाला देने वाले चाहते हैं कि भाई मंत्री और मुख्यमंत्री या बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल से सरकार चलाए। ये क्या सामाजिक न्याय और समानता है क्या? ये राइट टू इक्वालिटी है आपका? बताइए। इस पर भी कोई जवाब नहीं। कहा जाता है कि टारगेट किया जाएगा, हमें टारगेट किया जाएगा। अरे कहां से टारगेट होंगे भाई साहब? आप अपना इतिहास तो देखो। एक कन्विक्टेड चारा चोर, दूसरा अक्यूज्ड लैंड चोर, तीसरा जॉब चोर, चौथा माइन चोर, ये सारे चोर मिलकर बोल रहे हम टारगेट होंगे। भ्रष्टाचारियों का बैंड वैगन एक होकर भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने या उसको नस्तनाबूद करने के कानून का विरोध कर रहा है और संविधान का हवाला दे रहा है। बोले डेमोक्रेसी बचा रहे। नहीं भाई साहब, आप डेमोक्रेसी नहीं बचा रहे, आप अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बचा रहे। ये डेमोक्रेसी बचाओ का आप आदर्श गिना रहे हैं, जिन्होंने एक फोन करके फतवा जारी करके राजन्नाथ जी को हटा दिया। एसटी नेता थे ना, क्या गलती थी राहुल जी उनकी कि उन्होंने सच उगल दिया। ये डेमोक्रेसी का पाठ वो शशि थरूर जी की पार्टी पढ़ा रही है। जो शशि थरूर जी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये भारत की जो है एक प्रकार से मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो भाई शशि थरूर को म्यूट कर दिया। इनके एक नेता है, हम तो डिबेट में जाते हैं रोज सुबह शाम, तो वहां पे एक नेता आते संजय झा, एक बार उन्होंने आर्टिकल लिखा कि भाई पार्टी में ये चीजें सुधार होनी चाहिए, तो आज तक सस्पेंडेड है। आज तक संजय झा सस्पेंडेड फॉर एवर। ये लोग हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे, जो इमरजेंसी के पोता पोती है, जिन्होंने अपने बच्चों का नाम, बेटों का नाम, बच्चों का नाम इमरजेंसी के
विरोध में जो कानून का विरोध किया था मीसा का, उसके ऊपर रखा, वो हमको डेमोक्रेसी बचाने का पाठ पढ़ा रहे, भ्रष्टाचार को बचाते हुए। गजब है। चलिए, टारगेट करना होता तो प्रधानमंत्री पद को क्यों रखा जाता? आज गृह मंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा एक इंटरव्यू आया है और आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा। उसमें तो पूछा गया गृह मंत्री जी से, तो गृह मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जिस चीज को लागू करते हैं वो अपने आप को कानून के ऊपर नहीं, वो अपने आप को इक्वल अंडर द लॉ समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए 50 वर्ष पहले क्या हुआ था। अभी हम लोगों ने हाल ही में 50 वर्ष ऑब्जर्व किए थे संविधान हत्या दिवस के। उस समय एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको कहते हैं कांग्रेस वाले। इन्होंने जब कन्विक्ट हुए इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए तो पोस्ट फैक्टो कानून लाया, संविधान में बदलाव लाया कि प्रधानमंत्री पर कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। और दूसरी ओर एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो स्वयं कहती है कि अगर शुरुआत होगी इस कानूनी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री को पहले रखा जाएगा। अगर मुझ पे आरोप होगा और मुझको 30 दिन जेल जाना पड़ेगा, मैं भी ऑटोमेटिकली पद मुक्त हो जाऊंगा। यह अंतर है कांग्रेस की सोच का, निर्लज्जता की सोच का, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का, नैतिकता की सोच का।